Now what is the gait cycle? It is defined as the period of time from one heel strike to the next heel strike of the same limb. अगर हम दो लिम्स, ऑब्वियसली आर गेट इज द बाइपेडल गेट, इसमें दो लिम्स इन्वॉल्व, और अगर हम इसमें सिर्फ एक सिंगल लिम्ब को आउट ऑफ दोज टू लिम्स फोकस करें तो वन लिम्ब की हील स्ट्राइक से शुरू होकर दोबारा उसकी हील स्ट्राइक तक जितने भी इवेंट्स आते हैं उसे गेट साइकिल कहते हैं. अब ये हील स्ट्राइक क्या है? Gait cycle starts when the heel strikes the ground and it ends when same heel again strikes the ground. The next part of our lecture includes the phases of the gait cycle. What are the phases of the gait cycle? There are two phases of the gait cycle, the stance phase and the swing phase. अब stance का क्या मतलब होता है कि आप इन कॉन्टैक्ट आए हैं, आप रुक गए हैं. So the stance phase, it comprises of approximately 60% of the gait cycle. The second phase is the swing phase. Swing phase का क्या मतलब होता है? हवा में झूलना, ठीक है. The swing phase represents the period between a toe off on one foot and heel contact on the same foot. कि आपने पाँव उठा के दोबारा उसकी हील को जमीन पे रखा है. This phase comprises approximately 40% of the gait cycle. Now this flowchart again shows the phases of the gait cycle. The gait cycle has two main phases, the stance phase and the swing phase. During the stance phase, the foot is going to come in contact with the ground. And during the swing phase, the foot is going to remain off the ground. The same foot which was initially in contact with the ground. So the stance phase has various subphases. The initial contact of the foot with the ground, that is the heel strike, in which just the heel of the foot comes in contact with the ground. Loading response, the heel is already in contact with ground and you are loading your remaining foot towards the ground. So this is known as the loading response, as a result of which the foot will lie flat on the ground, so foot flat. Mid stance, this is the middle of the stance phase. The terminal stance, in which you are putting your weight on your toes and lifting your heel off. Pre-swing, in which the toe is taken off the ground. So the second phase is the swing phase, in which there is initial swing. You have lifted your foot off the ground and acceleration takes place. Mid-swing, your toe is completely off the ground. Terminal swing, you are slowing down your foot towards the ground again for the next heel strike. So in this way we start from here and again reach this heel strike, and a complete cycle of gait is completed. Now let's look at these phases again. The stance phase, it begins when the heel of one leg strikes the ground and ends when the toe of the same leg lifts off. Let us look at this through a diagram now. Now let us have a look at the stance phase in detail. The first part is the heel strike, and you can see that in the right foot heel is striking the ground. Second part is foot flat, or the loading response. Foot is lying flat on the ground. In the third part there is the mid stance, or middle of the stance phase. इससे पहले भी दो phases हैं, इसके बाद भी दो phases हैं. So ये mid stance phase है. Then heel off. Now your foot is resting on the toes and heel is taken off the ground. The last one is toe off, or pre-swing, in which the toe is taken off the ground and your right foot will swing. Swing phase तुम लोग को already पता है क्या है. Toe off and heel contact of the foot, इसके दरमियान जो phase है वो है swing phase. Swing का मतलब ये है कि इसमें freely in the air रहेगा आपका वो foot. अब देखते हैं कैसे. अब ये स्टार्ट होती है एक्सेलरेशन से. एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि टो ऑफ करने के बाद या प्री स्विंग के बाद आप अपनी लिम्ब को फॉरवर्ड्स स्पीडीली लेके जाएंगे ताकि आप दोबारा इसको ग्राउंड की तरफ लेके जाएं. मिड स्विंग क्या होता है? मिड स्विंग आपके स्विंग फेस का मिडिल पार्ट है. और डिसेलरेशन क्या है? डिसेलरेशन ये है कि उसको फॉरवर्ड लाने के बाद अब आप उसको स्लो डाउन करके दोबारा नेक्स्ट हील स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है.
सो ये था आपका स्विंग फेज. Let us now summarize the stance and the swing phases again. Now the stance phase comprises of the time between one heel strike and one toe off or pre-swing. This is the pre-swing. The swing phase comprises of the time between one toe off and the next heel strike. Now we have seen the steps of the gait cycle. Now let us see what is the underlying mechanism. So stance phase. Heel strike. What happens in the heel strike? You strike the heel to the ground and then try to lower your forefoot to the ground. In doing so, you start to slow down your foot, which is continuous deceleration. And when you are going to bring your foot in contact with the ground, you try to preserve the longitudinal arches of the foot. So क्या होता है, आपने heel को strike किया ground के साथ, अब आपने अपने remaining foot को ground की तरफ लेके जाना है. ये आप slowly करेंगे और इसमें आपने अपने foot की arches जो हैं उनको preserve करना है. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स जो हैं ये लोअर करते हैं फोरफुट को टू द ग्राउंड. तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि डॉर्सीफ्लेक्सर्स जो हैं दे शुड नॉट लोअर द फोरफुट टू द ग्राउंड. ये तो इनका एक्शन ही नहीं होता डॉर्सीफ्लेक्शन का, वो तो प्लांटर फ्लेक्शन होती है. तो यहाँ पे होती है एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब कोई मसल अंडर लोड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है. तो एंकल डॉर्सीफ्लेक्सर्स इस तरह से अंडर लोड कॉन्ट्रैक्ट ही हैं कि उनकी लेंथ इंक्रीज हो गई है और आपका जो फोरफुट है वो ग्राउंड की तरफ लोअर हो गया. सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप है लोडिंग रिस्पॉन्स. आपके फुट की तरफ वेट एक्सेप्ट होना चाहिए और फुट थोड़ा सा स्लो डाउन होगा. योर पेल्विस मस्ट बी स्टेबलाइज्ड, क्योंकि आपका फुट अब ग्राउंड के साथ इन कॉन्टैक्ट है तो आपका पेल्विस स्टेबलाइज होना चाहिए. And again, because your foot is bearing the weight of your body, your longitudinal arches should be preserved. ये इसके mechanical goals हैं. Next we have the mid stance, the middle of the stance phase. So mid stance phase में क्या होगा कि अब आपने pelvis को तो stabilize कर लिया है, आप उसको further stabilize करेंगे और इनमें आपकी help करते हैं hip abductors. ठीक है, लेकिन पेल्विस को स्टेबलाइज करने के बाद आप नी जॉइंट को स्टेबलाइज करेंगे. यू विल कंट्रोल डॉर्सीफ्लेक्शन. अब डॉर्सीफ्लेक्शन को आपने इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि आपका इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें प्लांटर फ्लेक्शन होनी है, तभी आपकी हील ऑफ द ग्राउंड होगी. तो आप कंट्रोल करेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन को, प्रिजर्व करेंगे अपने फुट का मोमेंटम और एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स की कॉन्ट्रैक्शन की तरफ शिफ्ट करेंगे. फिर क्योंकि मिड स्टैंस के बाद आपकी जो मिड स्टैंस में आपका जो फुट है वो इन कॉन्टैक्ट है विद द ग्राउंड, तो आप अपनी लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस ऑफ फुट को प्रिजर्व करेंगे. द नेक्स्ट फेज इज द टर्मिनल स्टैंस. टर्मिनल स्टैंस में फोर फुट ग्राउंड के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं और हील ऑफ द ग्राउंड होती है. अब हील ऑफ द ग्राउंड है तो रेस्ट ऑफ द लिम्ब विल एक्सेलरेट द मैस. अब इसका क्या मतलब है एक्सेलरेट द मैस करेगी लिम्ब, कि आपने हील तो ऑफ द ग्राउंड कर दी है, इसके बाद आपने प्री स्विंग फेज की तरफ जाना है, जिसके बाद आपने रैपिडली स्विंग फेज में से पास करके दोबारा ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट करना है, तो लिम्ब अपनी मूवमेंट को थोड़ा स्पीड अप करेगी. अब आप हील ऑफ करके टोज पे या फोरफुट पे अपनी बॉडी को जब सपोर्ट करेंगे तो आपके पेल्विस को अपने आप को स्टेबलाइज करना पड़ेगा. सो पेल्विस की स्टेबलाइजेशन होगी और क्योंकि आपका जो पूरा वेट है वो आपके फोरफुट पे है तो आप फिक्स करेंगे अपने फोरफुट को और अपने फुट की आर्चेस को प्रिजर्व करेंगे. स्टैंस फेज का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है प्री स्विंग फेज. ठीक है, इसमें आपने टो को ऑफ कर दिए. क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो आपकी लेफ्ट लेग पे बैलेंस्ड है और हमारा राइट फुट जो हमने जितनी भी वीडियोस देखी हमारा रेफरेंस फुट था वो ऑफ द ग्राउंड है, तो लिम्ब जल्दी से मूव करने की कोशिश करेगी टू अगेन टच द ग्राउंड. You have to preserve the arches of the foot in this case, and you will slow down or decelerate the thigh to prepare it for swing. क्योंकि अगर आप थाई को स्पीड अप करेंगे तो फिर स्विंग फेज जो है वो बहुत स्पीड से कैरी आउट होगा और इसमें आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी.
Now let's see the mechanical goals of the swing phase. In initial swing, जब आपने टो को अभी लिफ्ट ही किया ग्राउंड से, you will accelerate the thigh and vary cadence. इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्टेप्स को वेरी करेंगे थोड़ा सा आप, ठीक है. You will accelerate the thigh. प्रीवियसली हमने थाई को डिसेलरेट किया था ताकि एकदम जो है उसकी इम्बैलेंस ना हो पेल्विस की, ठीक है, और पेल्विस स्टेबल रहे. लेकिन अब हम थाई को एक्सेलरेट करेंगे सो दैट द फुट अगेन कम्स क्विकली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड और वेट ट्रांसमिट हो टू द ग्राउंड. क्लियर द फुट, आपने फुट को क्लियरली ऑफ द ग्राउंड जो है लिफ्ट कर लिया हुआ है. मिड स्विंग में स्टिल योर फुट इज ऑफ द ग्राउंड, इट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ द ग्राउंड. In terminal swing, what happens in terminal swing? You will slow down the thigh, you will slow down the leg, you will position the foot and prepare it for the next heel strike. Extend the knee in such a way that the heel is ready to strike the ground. तो ये सब वो मैकेनिकल गोल्स थे जो अचीव करते हैं हम अंडर हैंड, स्टैंस और स्विंग फेज के सब फेजेस में. अब थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं गेट एबनॉर्मेलिटीज का. सबसे पहले लर्चिंग गेट. लर्चिंग गेट में चलते वक्त एक लिम्प होता है. लिम्प का मतलब ये है कि लंगड़ा के चल रहा है कोई. सो दिस इज द लर्चिंग गेट. इट अकर्स इन इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ द हिप एबडक्टर्स. अब अगर दोनों साइड के पेल्विस के मसल्स जो हैं वो पैरालाइज्ड हैं, दोनों साइड की हिप एबडक्टर्स जो है बेसिकली वो पैरालाइज्ड हैं, तो वॉटलिंग गेट होगा और ये इस तरह होता है. नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्टेपेज गेट और ये होता है फुट ड्रॉप में. पेशेंट अपने लेग को रेज करके और अपने फुट को बहुत हाई अबव करके फिर ग्राउंड पे स्टेप करते हैं. नाउ वी हैव द लैटरल स्विंग गेट. इसमें लेग को लैटरली स्विंग आउट करके फिर पेशेंट फॉरवर्ड्स मूव करता है. ये भी फुट ड्रॉप में होता